Good morning, student. Today we are going to proceed the same chapter which we had studied in the previous lecture. That is the nationalism in India is a chapter. But yesterday we had discussed that what is nationalism, what is the condition of India in the First World War, what were those immediate circumstances by which the people of India started to revolt against the Britishers. Then we studied that how Mahatma Gandhi came in India and how he has introduced a new way of movement, a new way of revolution. What was his main weapon, the truth and non-violence. Then how he implement all these things, how he launched the three movement that was known as the Satyagraha in the year 1916, 17 as well as in the year 19, है ना. तो ये सब चीज़ें हम लोग कल पढ़ चुके, इन द प्रीवियस टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फ्रॉम द सेम टॉपिक. महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था इन द ईयर 16, 17 एंड 18, है ना. एंड इन द 16 चंपारण, 17 इन द खेड़ा एंड इन द 19 में in 1918 में he launched the movement in Ahmedabad. When Mahatma Gandhi launched all these movements, we are going to proceed the same next topic. When Mahatma Gandhi launched all these movements, then the Britishers, they thought that who is that person who came and he tried to dissolve all the program made by the Britishers, है ना. कौन सा वो शख्सियत है जो कि आ गया और अचानक ब्रिटिश के सभी कामों जो कि सुचारू रूप से चल रहा था, सभी काम आपका अस्त व्यस्त करने में लगा हुआ है बाय हिज डिफरेंट मूवमेंट टू reduce, to collapse all these things. Britishers has started a new type of ideas, and they had sent an act in India. They had made an act in India that was known as Rowlatt, ROWLATT, Rowlatt Act. They passed the Rowlatt Act in the year 1919. 1999 में महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट जारी किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट. इसका मेन मकसद क्या था देखिए आप. दिस एक्ट वाज गिवन द गवर्नमेंट बाय द रॉलेट एक्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेट इनॉर्मस पावर. By this act, British government get enormous power, and any person without trial can be imprisoned for 2 years. Means by this act, British government get a power, and the power was that कि without any person or any political activist can be arrested and put into jail without trial for 2 years. 2 साल तक बिना किसी ट्रायल के उसको जेल में रखा जा सकता था. ये एक्ट ये अनुमति दे रहा था. ठीक है. एम ऑफ दिस एक्ट वाज टू डिस्ट्रॉय द नेशन मूवमेंट. द मेन एम ऑफ दिस एक्ट वाज दैट कि द मूवमेंट विच वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी, नेशनल मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बाय इम्प्रिजनिंग द नेशनल वर्कर. If no national worker will be outside, then how the movement will be launched and how the movement will be proceeded, है ना. इससे क्या होगा, मूवमेंट अपने आप ही कोलैप्स कर जाएगा. तो मेन मकसद ये था कि अधिक से अधिक लोगों को पकड़ो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को पकड़ो और उनको जेल में डाल दो, सो दैट द एक्टिव मेंबर्स एंड द एक्टिव लीडर्स शुड नॉट बी आउटसाइड, एंड द मूवमेंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी, दैट शुड बी आपका अपने आप ही क्या हो जाएगा, दैट शुड बी रिड्यूस और कोलैप्स इजिली, है ना. ये मकसद था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट का. सो इट वॉज अ ब्लैक लॉ. It was a black law because it was not a right, ना. It was against the human rights कि आप किसी को पकड़ते हो और बिना किसी उसके FIR, बिना किसी वारंट के, बिना किसी कारण के आप पकड़ लिए और 2 साल बाद उसका ट्रायल होगा, ना. क्यों पकड़ा गया है, क्यों नहीं पकड़ा गया है, नो वन नोज. आप उसको जेल में डाल दोगे उसके बाद. तो दैट वाज अ ब्लैक लॉ, है ना, बिकॉज इट वाज एन अगेंस्ट द ह्यूमन राइट. दैट वाज ब्लैक लॉ एंड इट वाज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट. So because of this act, because of this black law, this humiliating act that was known as the Rowlatt Act, Mahatma Gandhi ने डिसाइड किया कि द सत्याग्रह मूवमेंट which Mahatma Gandhi had launched for the farmer of Champaran, for the workers of the mill workers of the Ahmedabad and the peasants of the
खेड़ा। अब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि जो रॉलेट एक्ट आया है इसके खिलाफ हम सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करेंगे। सत्याग्रह क्योंकि ये कोई आपका कोई अच्छी बात नहीं है, कोई सत्यता नहीं है कि आप किसी को पकड़ के जेल में डाल दो। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम इसके खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ नॉन वायलेंस सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि आई विल लॉन्च द सत्याग्रह मूवमेंट दैट शुड बी नॉन वायलेंस एंड इट शुड नाउ इट शुड बी अगेंस्ट द आपका रॉलेट एक्ट। ठीक है, हड़ताल वाज ऑर्गेनाइज। मैंने आपको शुरू में बात किया था कि द मेन एलिमेंट ऑफ द सत्याग्रह वाज हड़ताल, स्ट्राइक, है ना। देन मीन्स अपने आप ही परेशान, अपने आप को हम खुद ही परेशान करेंगे और आप जो है उससे पिघल कर हम अपना मेरा हक दोगे। तो फॉर दैट महात्मा गांधी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया हड़ताल। दैट वाज स्टार्टेड इन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने हड़ताल आपका ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, रैलीज वर आपका कंडक्टेड, जहाँ तहाँ लोगों ने रैलीज भी किया, हड़ताल भी किया। इसके बाद शॉप्स वेयर क्लोज ना, नॉट ओनली द रैलीज एंड हड़ताल बट कॉमन पीपल आल्सो ज्वाइन एंड शॉप्स वेयर क्लोज डाउन। वर्कर्स आपका कंडक्टेड स्ट्राइक्स। The workers who were working in the mill, in the workshop, in the factories, they also started to conduct the strikes, है ना। So by हड़ताल, by आपका closing the shops and by strike, महात्मा गांधी started to show his aggression against the Rowlatt Act, ना। These protests led the जलियांवाला बाग मैसेकर। इसी कारण आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। 16 अप्रैल को महात्मा गांधी ने नेशनल वाइड हड़ताल किया। और जब हड़ताल किया आपका तो क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दे शॉक डाउन एंड दे डिसाइडेड दैट कि हाउ कैन वी स्टॉप महात्मा गांधी। तो 6 अप्रैल को जब महात्मा गांधी ने आपका हड़ताल लॉन्च किया तो मार्शल लॉ लगा दिया गया, स्पेशली इन अमृतसर। 11 को अमृतसर में क्या कर दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। एंड इवन नो लीडर्स वेयर अलाउड टू इंटर इन दिल्ली। महात्मा गांधी को भी आपका नज़रबंद कर दिया गया। इवन महात्मा गांधी वाज आल्सो नॉट अलाउड टू इंटर इन दिल्ली, है ना। एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। वही समय था आपका 13 अप्रैल 1919। दैट वाज द डे ऑफ बैसाखी। है ना। बैसाखी का मेला लगता है और मेनी पीपल्स वेयर गैदर्ड इन जलियांवाला बाग, है ना। जलियांवाला बाग अ प्लेस इन अमृतसर। पीपल्स वेयर गैदर्ड देयर इन द ईयर 1919। द डे वाज 13 अप्रैल को वहाँ पे लोग गैदर हुए। अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज एट जलियांवाला बाग। तो मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज, भाई जब स्ट्राइक कर दिया गया, दो बात आती है, स्ट्राइक में मीटिंग क्यों हुई। मीटिंग वाज द ओनली वे बाय विच द पीपल, द लीडर्स कैन मेक द पीपल अवेयर कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और हम लोग जो है इसका अपोज कैसे करेंगे। तो उस समय कोई व्हाट्सअप और कोई सब चीज़ था नहीं, केवल पब्लिक मीटिंग से ही लोगों को अपनी बातों से अवगत कराया जा सकता था। तो अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज इन जलियांवाला बाग, है ना, इन अमृतसर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ नेशनल लीडर बिकॉज मेनी लीडर्स वे पुट इनटू जेल। मैंने आपको बताया ना, महात्मा गांधी को भी आपका नज़रबंद कर दिया गया और इनको जो है दिल्ली में इंटर नहीं करने दिया गया। इसके अलावा बहुत जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उसको जेल में बंद कर दिया गया। टू शो देयर एंग्रीनेस पीपल्स गैदर इन जलियांवाला बाग एंड अ मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज। तो उस मीटिंग में क्योंकि आपका वो मेला था, है ना, बैसाखी के दिन मेला लगा हुआ था एंड मेनी पीपल फ्रॉम द नियर बाई एरिया दे कम एंड दे ज्वाइन द मेला। ठीक है, तो मेनी विलेजर्स, है ना, केम टू अटेंड द फेयर। मेला को अटेंड करने आए थे एंड वेर आल्सो प्रेजेंट इन द पार्क, है ना। सब लोग इकट्ठा भी हुए थे आपका जलियांवाला बाग में। और तभी आपका जनरल डायर उसमें इंटर किया, है ना, जनरल डायर इंटर किया एंड देयर वाज ओनली वन एग्जाइल, एक ही गेट था जहाँ से लोग बाहर निकल सकते थे। ही इंटर विथ हिज ट्रूप्स एंड आस्क्ड द ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द पुलिस, ऑन द पीसफुल पीपल, है ना, पीसफुल प्रोटेस्टेंट जो हो रहा था, वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, उनके ऊपर आपका उन्होंने फायरिंग किया। ही ऑर्डर्ड द ट्रूप टू फायर द पीपल 100 राउंड, कम से कम 400 राउंड गोलियाँ फायर की गई वहाँ पे और 100 पीपल लगातार चलती रही। फायरिंग जो है लगातार 10 मिनट तक चलती रही, है ना। उस 10 मिनट के लगातार फायरिंग में
thousands people were injured and hundreds were died, है ना। देर बाद नो एनी ऑफिशियल डाटा की वास्तव में कितने लोग मरे थे, कितने लोग घायल हुए थे, लेकिन आप कह सकते हो कि जब 400 राउंड गोली चलेगी तो फिर कितने लोग मरेंगे, कितने लोग घायल भी होंगे, है ना। तो वेर किल्ड एंड मेनी वेयर वुंडेड, बहुत सारे घायल हुए, बहुत सारे आपका जो घायल भी हुए थे, मेडिकल फैसिलिटीज एट द टाइम वाज नॉट गुड, तो बहुत सारे पीपल उसमें जाकर क्या हुए, बाद में मर भी गए। दिस इंसिडेंट कॉल्ड द जलियांवाला बाग मैसेकर एंड दिस क्वेश्चन विल आल्सो ऑलवेज कम इन द एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड what is Jallianwala Bagh massacre and when it was started, when it was happened, no, not started, when it was happened and what was the consequence, ना, what was the consequence। देखिए जलियांवाला बाग मैसेकर was an incident by which महात्मा गांधी had to put his leg back, ना, अपने आप को पीछे की ओर खींचना पड़ा। कारण यही था कि जब when the जलियांवाला बाग मैसेकर happened, when the people came to know, सुबह सुबह जब लोगों को समाचार पेपर से बाय द न्यूज़ पेपर, when people understand get information कि एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है जलियांवाला बाग में, people become aggressive, people started to come outside from the houses or come on the street and started to protest against the Britishers। now the people become aggressive, violent हो गए लोग। अब लोग जो है पुलिस के आपके ट्रुप्स पर हमला करना स्टार्ट किए, दे आपका अटैक ऑन द पुलिस स्टेशन, दे अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, है ना। एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड टू डू ऑल दोज थिंग्स, द ब्रिटिशर्स आल्सो स्टार्टेड टू सप्रेस देम रूडली, है ना, ब्रूटली। ब्रिटिश भी उनको ब्रूटली सप्रेस करने का काम करना स्टार्ट किए। इवन द सत्याग्रही दे वेर आस्क्ड, जहाँ भी सत्याग्रही देखते थे, दे वेर आस्क्ड टू क्रोल ऑन देयर नीज, ना, दे हैड टू रब देयर नोज ऑन द स्ट्रीट एंड इवन सैल्यूट द स्मॉल सिपाहीज। These were the things which were done by the Britishers to humiliate the सत्याग्रहीज, है ना। तो अब इस जब ब्रिटिश ये करते थे तो इंडियंस दे आल्सो गेट व्हेन दे गेट चांस दे अटैक ऑन ऑल द पुलिस स्टेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। When all these things were happening, Mahatma Gandhi thought that the thing is totally out of control now. It is better that we can call off the Satyagraha movement, because if it continued, large amount of people will lose their life. And the second was that what I said कि the movement become आपका क्या, the movement become aggressive, violent. So महात्मा गांधी had decided कि अब ये movement को हमें बहुत लंबा नहीं चलाना है, अगर हम लंबा चलाएंगे तो क्या होगा कि large amount of people will be died. That's why महात्मा गांधी decided to call off the movement. Okay, so in this way, after the incident of 1919 13 अप्रैल 1919 को जो आपका मूवमेंट हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग, उसके कारण आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको महात्मा गांधी ने कॉल्ड ऑफ कर लिया। जब महात्मा गांधी ने मूवमेंट कॉल ऑफ किया, उसके बाद बात ये हुई कि what was there was a committee which was made and they had take decision कि what was the loophole in the Satyagraha movement, why the Satyagraha movement was not so successful, why they can't achieve their goal. When these things were studied, then find out that it was because the peoples in India were not united. Hindus and Muslims were not united. Because of this, the Satyagraha movement was unsuccessful. So now the things were made that how can we unite the people, how can the Hindus and the Muslims can be united, so that the movement will be a mass movement and become more and more effective, है ना। So this thing was started to think by the thinkers. In the meanwhile, the First World War was over, है ना। कैसे किस तरीके से घटना आगे बढ़ रही है। जब जलियांवाला बाग मैसेकर 19 में ख़त्म हुआ और उसके बाद उसी समय लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वार भी क्या हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। When the first world war was over, the Allied force they get victorious, British got victory, and when the Britishers got victory, they had started to rule the large part of Europe, especially the Ottoman Empire। और जो पार्ट था उसको भी ब्रिटिश ने अपने कब्जे में कर लिया। ब्रिटिश ने ओटोमन एम्पायर को कब्जे में किया, तो जो आपका ओटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, जिसको हम लोग बोलते हैं खलीफा, है ना, खलीफा, ही वॉज बीन ओवरथ्रोड बाय द ब्रिटिशर्स, he was been overthrown by the Britishers, and now it was declared that कि the order of Khalifa should not be followed,
Now today onward, we occupied Ottoman Empire. So the order of Britishers should be followed by the people. So that was a thing which had made the Britishers, which had made the Muslims unhappy in India, throughout the world, also in India. ना जब खलीफा को हटाया गया तो पूरे दुनिया के मुस्लिम्स इसके विरोध में खड़े हुए और स्पेशली इन इंडिया ये इसका भी असर पड़ा और हमारे देश के मुस्लिम भी इसके खिलाफ हुए ना. इट वाज अ मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हेन दिस थिंग वाज हैपन. सो इन इंडिया द थिंग द इंडियन मुस्लिम्स दे आल्सो स्टार्टेड दैट कि वी विल ट्राई टू लॉन्च, वी आर गोइंग टू लॉन्च अ movement, and that movement was organized by Muhammad Ali and Shaukat Ali ब्रदर्स ना. मोहम्मद अली एंड शौकत अली ब्रदर्स ने एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट के बारे में सोचा जो कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में था. अगेंस्ट में क्या था कि आपने खलीफा को क्यों हटाया, इसके बाद उसके बारे में ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया ना. द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपके ब्रिटिश ने काम किया था उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज था. और काम क्या किया था, द टर्किश सुल्तान है ना, द टर्किश सुल्तान था है ना, जिसको टाइटल मिला हुआ था खलीफा का है ना. द मुस्लिम कंसिडर देयर स्पिरिचुअल लीडर. खलीफा वाज कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल लीडर एंड ही वाज बीन ओवरथ्रोन बाय द ब्रिटिशर्स. सो मेनी मुस्लिम ज्वाइन द मूवमेंट सेंटिमेंटली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस है ना, कि आपने हमारे खलीफा को हटाया, टर्किश खलीफा को आपने हटाया है, तो हम जो मुस्लिम्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड दे विल ज्वाइन अ मूवमेंट अगेंस्ट यू. दैट वाज द आइडिया ऑफ आपका शौकत अली एंड द मोहम्मद अली. So when these two brothers, Muhammad Ali and Shaukat Ali, went to Mahatma Gandhi and asked Mahatma Gandhi that we are going to organize a movement or organize a protest against the Britishers, against the Turkish abolition of Turkish Khalifa. When they give this statement to Mahatma Gandhi was very happy. Mahatma Gandhi thought that is a very good chance. Because Shaukat Ali and Muhammad Ali will unite the Muslims, and I will organize the Congress will organize the unite the Hindus, and unitedly when they will launch the movement, that will be more and more effective. So in this way Khilafat and non-cooperation movement was launched by Congress है ना. बट बिफोर लॉन्चिंग ऑल दिस मूवमेंट समथिंग वाज हैपनिंग. क्या हुआ इसके बारे में हम सोचते हैं. तो एक तो हमने देखा खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया गया. अब आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी महात्मा गांधी ने भी सोचा कि चलो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं. वाई नॉन कॉपरेशन? वाई महात्मा गांधी हैड डिसाइडेड दैट द सेकेंड मूवमेंट विच विल बी लॉन्च बाय मी विल बी नोन एज नॉन कॉपरेशन ना. तो उसके लिए महात्मा गांधी ने की जो बुक है हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिशर्स केम इंडिया एंड वी हैड सपोर्ट द ब्रिटिशर्स है ना, बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट द ब्रिटिशर्स. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लॉन्च द मूवमेंट दैट इज आपका हिंदू नहीं, दैट वाज लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन द ईयर 1920. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में महात्मा गांधी ने लॉन्च करने का फैसला किया. इट्स एम टू एट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन बाय द पंजाब. दो चीज़ें थी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मेन उद्देश्य यही था कि जो पंजाब में आपने जलियांवाला बाग घटना किया उसके अगेंस्ट में, और जो टर्किश सुल्तान खलीफा को आपने हटाया है उसके अगेंस्ट में हम ये मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं एंड अटेन स्वराज. 3 पहला the injustice which was done in आपका पंजाब, secondly the injustice which was done against the Muslim, and the thirdly to obtain the Swaraj. These are the 3 main purpose to launch the Satyagraha and non-cooperation movement है ना. तो इसके साथ साथ में क्या था कि when महात्मा गांधी started this movement, at first Congress, some part of the Congress, they were not in the they thought that कि this movement is not so successful, हम इसके खिलाफ हैं ना. पहले क्या था कि स्टेजेस में दिया गया कि कौन कौन से स्टेजेस होंगे सत्याग्रह मूवमेंट के, लेकिन इस स्टेज को जानने के पहले हम लोग ये जानते हैं कि जब महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को रखा इन फ्रंट ऑफ द कांग्रेस, सो देयर वाज अ डिफरेंस इन द कांग्रेस
देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस कि हम लोग इस मूवमेंट को कुछ कांग्रेस के लीडर्स इसका सपोर्ट करना नहीं चाहते थे, कुछ चाहते थे सपोर्ट करना, है ना। तो डिफरेंस क्या क्या था उसमें, मेनी कांग्रेस अपोज बाइकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शन, है ना, अपोज बाइकॉट ऑफ काउंसिल इलेक्शन। सम द आइडिया ऑफ सम कांग्रेस लीडर्स वे आर दैट कि हम क्या करेंगे, मेनी कांग्रेस अपोज बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन। कुछ का मानना था कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हम काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट करना नहीं चाहते, हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ का मानना ये था कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ को डर था कि द मूवमेंट बिकम वायलेंट एंड द इंसिडेंट लाइक आपका जलियांवाला बाग शुड बी हैपन। बहुत लोगों को डर था कि आपका मूवमेंट जो है वायलेंट भी हो सकता है। और लास्ट में आपका था कि नो कंसेशन बिटवीन द आपका सपोर्टर एंड द अपोनेंट, कोई समझौता नहीं हो पा रहा था। सपोर्टर एंड अपोनेंट्स में कोई आपका समझौता नहीं हो पा रहा था कि वास्तव में मूवमेंट को लॉन्च किया जाए या नहीं लॉन्च किया जाए, ठीक है। बट एट लास्ट बाय द फोर्स ऑफ महात्मा गांधी the movement was been launched ना, the movement was been launched दिसंबर 1920 के सेशन में ये फैसला किया गया कि दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। तो जनवरी 1920 को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने क्या किया, लॉन्च किया। लॉन्च करने के पहले क्या क्या चीज़ें थी कि इस मूवमेंट में क्या क्या किया जाएगा, है ना। व्हेन महात्मा गांधी डिसाइडेड कि इस मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा, व्हाट वाज द मेन पर्पसेस ऑफ दिस मूवमेंट। पहला क्या किया जाएगा, स्टेजेस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द फर्स्ट स्टेज वाज एवरी इंडियन विल सरेंडर द टाइटल विच वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। सबसे पहले जो टाइटल उसको दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा, राजा, महाराजा, है ना, नवाब, ऑल दिस टाइटल विच वर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, ऑल द टाइटल्स विल बी रिटर्न बैक टू द ब्रिटिश। Second, boycott of the civil services. All the service people who were serving the Britishers, they decided that we will boycott the civil services, like policemen give up their job, teachers give up their job, lawyers give up their jobs, है ना। Means every people who were working for the Britishers, they started that कि हम लोग सभी लोग अपनी जॉब को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मीन्स हम आपके काम में आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। दैट वाज अनदर थिंग। नेक्स्ट क्या था आपका, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स। हम अगर नॉन कॉपरेट कर रहे हैं तो नॉन कॉपरेट हर जगह पे करेंगे। आपके द्वारा बनाए हुए सामान का भी हम बहिष्कार करेंगे। इवन द गुड्स विच विल बी मेड बाय यू, द फॉरेन गुड्स विल बी बाइकआउट, है ना। इकोनॉमिक क्लब्स कर जाएगी आपकी। इफ गवर्नमेंट, अगर ये भी बात किया गया था, इफ गवर्नमेंट विल स्टार्ट टू सप्रेस द मूवमेंट, है ना, रिप्रेसिव मेजर्स अगर गवर्नमेंट लेकर आती है तो हमारा बात हम जो है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयार हैं। एंड दैट इज द CDM, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। ये भी आपका था कि इफ ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू सप्रेस द मूवमेंट forcefully, then the next option is open, second stage is open and that is CDM, सिविल डिसऑबीडिएंट मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे, ठीक है। और तीसरा था आपका कि हाँ, जो नेक्स्ट लास्ट पार्ट था स्टेज ऑफ CDM NCM में, वो ये था कि मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट। देखिए, विदाउट द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल नो मूवमेंट विल बी सक्सेसफुल। That was known by Mahatma Gandhi because the main power of Mahatma Gandhi was the people of India. The mass support, mass agitation, mass revolution, mass movement. Because when Mahatma Gandhi alone do the work, do the movement, he must be suppressed by the Britishers. But when thousands and lakhs of people will protest against the Britishers, then how the Britishers will do it to repress them? If they will kill, then that should be violent, है ना। So it was decided that कि more and more participation of the people will be made, लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और लोग उसमें आएँ, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना। तो बाय ऑल दिस प्रिपरेशन महात्मा गांधी हैड डिसाइडेड टू लॉन्च द मूवमेंट इन जनवरी 1921। ओके, सो इन जनवरी 1921 महात्मा गांधी लॉन्च द आपका सेकेंड पावरफुल मूवमेंट, दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
So what was the effect of non-cooperation movement, how the people were participating in the non-cooperation movement, and what was the result of the non-cooperation movement? We will discuss it in the next lecture. Thank you.